Welcome children. In this video, we are going to discuss search operation in a binary file. Searching means finding a particular record in the file on the basis of a search key or a specified condition. Means you are going to read the objects of the file one by one and look for the desired key on the basis of which search has to be performed, and as soon as you find the record, that record has to be printed or processed as required, and if not found, then you have to inform to the end user that no such record is present. So this is the basic meaning of search. Now, in order to perform search operation in a binary file, the simplest and the common method is sequential search, and that is what we are going to apply here. So, in this sequential search method, we read the records of the file one by one and look for the desired search key in the currently read record. Okay. What are the steps to perform sequential search? First of all, open the file in read mode. You have to, because searching is somewhere related to reading, right? So you will keep on reading the records and look for the desired search key. So for this, you have to open the file in the read mode. Then read the file contents record by record, that is one object at a time. And in every record that you read, you have to look for the desired search key as per the requirement of the problem that you are solving. Okay, and if that particular key is found, means the value of that key is same as what you want in the what you wanted, means according the question, whatever value you wanted to search for the key, if you found it, then you have to process as required. Okay, if you want to print it, then you can print it on the console screen. If you want to write it on some other file, you can write those objects on the other file. So process as required. And if not found, then read the next record, okay, in sequence. Then look for the desired search key in that record also. If found, then process as required. If not found, then again go for the next record. So this way the work will continue. You will keep on reading one object from the file and look for the desired search key, and if found, process as required. If not found, go and read the next record. As soon as the file finishes, and if you happen to come across a situation where search key is not found in any of the records, then you have to inform to the end user that no such value was found in the file, means none of the records were having this particular value for the desired search key. Okay, so this is the way we perform sequential search. Let us understand it with the help of some programs. Assume that a file worker.dat is already created containing few records of the workers, each having details like WID, WNAME, age, salary in the form of a dictionary. So worker.dat file is already created and is having few dictionary objects containing details like WNAME, age, salary and work ID. Okay, now you considering this file, you have to search and display only those records of workers who are 25 years of age. तो हमें सिर्फ उन वर्कर्स का डिटेल डिस्प्ले करना है जो कि 25 ईयर्स ऑफ एज हैं. तो हमारे यहाँ पे डिजायर्ड सर्च की क्या है? एज. ओके, सो एज इज माय desired search key. So I'll be reading each of the records of this file one by one and see if the value of age is 25 or not. If it is 25, then I will display it on the output screen, and if it is not 25, I will just move on to the next record in sequence. So since I said that file to be read is already created, so here is the content of the file. Suppose this file is already created having this content. This is the previous content of the file. Okay,
means the basic content of the worker.dat file upon which we are going to perform the programs. Okay, so consider this file only for both the programs that we are going to discuss. So our question was to see whether the age is 25 or not. If it is 25, then you have to print it on the output screen. So first of all, what I did, see, I have to import pickle module. Why? Because I am going to make use of load and load function which is present in the pickle module. And you know children that search operation basically requires reading. So you know in case of reading you have to make use of load function. So see what I have done. I have opened the file in the read mode. Try is there in order to handle exceptional situations like end of file. Okay, open the file in read mode. अब देखिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है फाउंड. ये जो वेरिएबल है इससे हम इस बात को ट्रैक करेंगे कि हमें रिकॉर्ड टू बी सर्च मिला कि नहीं मिला. ठीक है, जैसे ही मुझे वो रिकॉर्ड मिलेगा जिसको मैं सर्च कर रही हूँ, मैं फाउंड की वैल्यू को चेंज कर दूंगी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, और अगर मुझे ये नहीं मिला, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला जिसमें एज 25 है, तो फिर मेरा फाउंड 0 था, 0 ही रह जाएगा, जिससे मुझे ये इंडिकेट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द फाइल कि मेरे पास ऐसा कोई भी वर्कर नहीं था जिसकी एज 25 थी. ठीक है, तो मैंने वही किया. यू नो दैट फॉर रीडिंग वी यूज़ अ लूप वाइल ट्रू. जब तक कि हमें रिकॉर्ड मिलते रहते तब तक कि हम इसमें से रीडिंग करते रहते हैं. एक रिकॉर्ड रीड किया, डी में आया. अब यू नो दैट डिक्शनरी है ये, तो एज उसकी एक की है. तो अगर डी और एज इज़ 25 तो आपने फाउंड को 1 कर दिया. ठीक है, और डी को प्रिंट कर दिया. अब ये वर्क कब तक होता रहेगा? जब तक कि आपको फाइल से रिकॉर्ड मिलते रहेंगे. और जैसे ही आपका एंड ऑफ फाइल आएगा, लोड फंक्शन क्या करेगा? लोड फंक्शन विल जनरेट end of file error and you will be shifted to this point. Okay, and you are shifted to this point when all the records have been read. end of file आ गया था तब आप यहाँ पे आए. तो अगर end of file पे आने के बाद भी आपका फाउंड 0 है तो लिखिए no such worker is present. ओके, एंड क्लोज द फाइल. ठीक है, तो इतना हमें करना होता है. सो व्हाट आई डिड, opened the file in read mode, then kept on reading one record at a time, and I looked for the desired search key and its value. If I found, then I changed the value of found to 1 and printed it on the output screen as per the requirement of my question. And at the end of the file, if I found that the value of found variable is still 0, I reported नो सच वर्कर. और अगर आपको मिला होगा तो फाउंड 1 हो चुका होगा, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा. ठीक है, और सिर्फ फाइल क्लोज हो जाएगी. क्लियर? तो देखिए ये हुआ कैसे. यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से फाइल, सबसे पहले हमारा कर्सर यहाँ था. जब हमने फाइल को रीडिंग मोड में ओपन किया हमारा कर्सर यहाँ था. ठीक है, जैसे ही मैंने एक रिकॉर्ड रीड किया कर्सर मेरा यहाँ आ गया. अब मैंने इस रिकॉर्ड की एज को चेक किया. ठीक है, अब ये जो एज है मेरा अगर 25 है, नहीं है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हम सीधे फिर से यहाँ पे आ गए. अब कर्सर कहाँ है? यहाँ पे. अब जब मैंने फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट की तो कर्सर यहाँ आ गया. अब एज देखिए 45 है, नहीं है. 25 है, नहीं है. ओके, तो फिर से हम इस कंडीशन में एंटर नहीं किए, अगेन यहाँ आ गए. अब हमने रीड किया तो हम यहाँ पे पहुँचे. यहाँ पहुँचने के बाद हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आप एक रिकॉर्ड रीड करते हो, रिकॉर्ड रीड करने से पहले आप रिकॉर्ड की बिगनिंग में होते हैं और रिकॉर्ड रीड करने के बाद आप रिकॉर्ड के एंड में होते हैं. अब आप इसकी एज चेक करेंगे तो 25 है, नहीं है. ठीक है, तो फिर से हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड किया, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड किया तो हम यहाँ आ गए. 38 इसकी एज है, 25 नहीं है.
सो अगेन क्या हुआ, यहाँ पे हमारा वर्क हम इस कंडीशन में एंटर नहीं किए। उसके बाद जब हमने फिर से रीडिंग की तो हमें कोई रिकॉर्ड फाइल में नहीं मिला। तो एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन, एंड ऑफ फाइल एरर विल बी रेज्ड एंड यू विल कम हेयर। अब फाउंड की वैल्यू देखिए, फाउंड हमारा कभी भी हम इस कंडीशन में एंटर किए ही नहीं, तो फाउंड 1 हुआ ही नहीं, इसीलिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नो सच वर्कर विल बी द आउटपुट। ठीक है, सो आई हैव कंसिडर्ड द सेम फाइल दैट इज योर worker.dat here. Let us see the output. See, the output is no such worker, because you have seen that in the file none of the workers were having the age as 25. Another question, considering the same file worker.dat, you have to input name of a worker from user and then search and display his WID, name and salary. मतलब अगर आपको एक वर्कर आईडी, एक वर्कर का नेम इनपुट लेना है, और अगर वो वर्कर आपको मिल जाता है तो आप उसकी WID, नेम और सैलरी डिस्प्ले करेंगे। और अगर नहीं मिलता है, एंड ऑफ फाइल तक आपको ऐसा कोई वर्कर नहीं मिलता है, देन यू विल रिपोर्ट टू द एंड यूज़र दैट नो सच वर्कर इज प्रेजेंट। ओके, तो सब यू कैन सी हेयर दीज आर द, I have considered the same file and you can see that first name was Sachin, second was Ravi, third was Karan and fourth was Naresh. Now what is happening? First of all, file is opened in the read mode. Now name of input of a name has been taken. ठीक है, फाउंड को हमने फिर से 0 रख लिया। अब हमने क्या किया, लूप चलाया और पहला रिकॉर्ड रीड किया। जब पहला रिकॉर्ड रीड करने जा रहे थे तो कर्सर यहाँ था, रीड करने के बाद कर्सर यहाँ आ गया। अब हमने क्या किया, इसके नेम को यूज़र के नेम से कंपेयर किया। अगर ये सेम होगा तो आपको क्या होगा, फाउंड 1 हो जाएगा और उसकी WID, W नेम और सैलरी प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं होगा ऐसा तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड करके फिर इसके नेम को कंपेयर करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था। ठीक है, तो मिलने पे आप इफ़ की कंडीशन में एंटर हो जाएंगे और फाउंड को चेंज कर देंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। अगर एंड ऑफ फाइल तक आपको एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जो जिसका नेम सेम एज दिस नेम है, तो आपका फाउंड 0 ही रहेगा, नो वर्कर बाय दैट नेम विल बी प्रिंटेड एंड द फाइल विल बी फाइनली क्लोज्ड। और अगर मिल गया तो फाउंड 1 हो चुका होगा, तो उस केस में आप सीधे फाइल क्लोज कर देंगे। ठीक है, so see, these are the sample outputs here. You can see that here first the name, input name was Ravi. Sorry, here the input name is Ravi. So Ravi is present in the file, that is why his work ID, name and salary has been printed. लेकिन अगर मैंने नेम विकास दे दिया तो देखिए इसने क्या दिया, नो वर्कर बाय दैट नेम। देन assuming the same file worker.dat, input a worker ID from user and then search and display the name and salary of that worker. तो आपको आपकी बार वर्कर आईडी इनपुट लेना है, और वर्कर आईडी के हिसाब आप मालूम होगा आपको कि वर्कर आईडी इज़ अ फील्ड दैट इज़ यूनिक फॉर एवरी रिकॉर्ड। ठीक है, सो इन दिस केस आपको जैसे ही वो वर्कर आईडी मिल जाती है जिसका रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले, जिसके नेम और सैलरी को आपको डिस्प्ले करना है, आप आगे के सर्च को रोक सकते हैं। ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट स्टॉप सर्चिंग द रिकॉर्ड इवन आफ्टर गेटिंग द रिकॉर्ड टू बी सर्च्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड इट, दैट इज़ व्हाई आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन। अब देखिए, हमें मालूम है कि वर्कर आईडी तो हमारे दो वर्कर्स की सेम नहीं होगी, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, तो कर्सर मेरा यहाँ पे है, फिर मैंने वर्कर आईडी मांगी, तो यूज़र ने मुझे एक वर्कर आईडी दी, फाउंड को 0 रख लिया है, रीडिंग के लिए लूप स्टार्ट किया और पहला रिकॉर्ड रीड किया तो कर्सर यहाँ आ गया।
अब मैंने चेक किया 101, क्या WID ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज इक्वल टू द WID एंटर्ड बाय यूज़र। अगर ये होगा तो हमने फाउंड को 1 कर लिया और हमने इसके नेम और एज को डिस्प्ले कर दिया और मैंने ब्रेक कर दिया। दिस इज़ द मेन पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस। जैसे ही मुझे वो WID मिल जाती है, मतलब मुझे जैसे ही वो वर्कर मिल जाता है जिसकी WID इस WID के बराबर है, मीन्स द ID विच इज़ एंटर्ड बाय यूज़र, मुझे इंस्टेंटली क्या करना है, मुझे यूज़र को बताना है कि मतलब यूज़र को उसका नेम और एज प्रिंट कर देना और फाउंड को 1 कर देना। लेकिन अब आगे ढूंढने से फ़ायदा नहीं। सपोज़ यू आर सर्चिंग फॉर 202, आपने सबसे पहले यहाँ थे, आपने ये एक रिकॉर्ड रीड किया, आपको इसकी ID 202 नहीं मिली, आप आगे बढ़ गए। अब आपने नेक्स्ट रिकॉर्ड रीड किया तो आप यहाँ आ गए, अब आपको 202 मिली, येस यू गॉट इट। तो क्या होगा, आपको फाउंड 1 बना देंगे और नेम और एज इसका डिस्प्ले करके आप ब्रेक कर देंगे। नाउ ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक आपको सीधे इस वाइल लूप से बाहर ले जाएगा। तो बाहर आने पे आपको इस यहाँ पे देखिए कोई काम तो है नहीं, यही वाइल लूप था, इसके बाद आपको कोई काम नहीं है इसमें, तो ये आपको यहाँ पे रुकवा देगा, ठीक है। लेकिन इस केस में एक और चीज़ है, इस केस में आप एंड ऑफ फाइल रीच नहीं, हो सकता है रीच करें, हो सकता है ना रीच करें, तो इसीलिए फाइल की क्लोजिंग हम एंड में ही करते हैं। मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने इस बार फाइल क्लोजिंग नहीं की है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक होगा, अब देखो 202 आपको चाहिए था, आपको मिल गया, आपने इसका नेम और एज डिस्प्ले कर दिया और आप सीधे लूप के बाहर आ गए, तो एंड ऑफ फाइल तो आया नहीं जो आपको एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन में एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आप एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन में एंटर नहीं किए तो आपकी फ़ाइल क्लोज हो नहीं पाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने फाइल क्लोज का ऑप्शन एक्सेप्ट से बाहर रख दिया है, ठीक। अब मान लीजिए आपको एक बार भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता जिसकी WID मैच करती हो, तो क्या होगा, फाउंड तो आपका एंड ऑफ फाइल आ जाएगा और आपको कभी भी इस कंडीशन में आप एंटर नहीं करेंगे, तो फाउंड 0 का 0 ही रह जाएगा। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा आप यहाँ पे आ जाएंगे, फाउंड को 0 पाएंगे और नो वर्कर बाय दैट ID लिख देंगे। उसके बाद भी तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये तो किसी ट्राई एक्सेप्ट का हिस्सा है नहीं, इट इज़ आउटसाइड ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, सो इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एनी हाउ, तभी फाइल क्लोज हो जाएगी, है ना। तो हमारे दोनों पर्पज सॉल्व हो गए। लेट अस सी द सैम्पल आउटपुट्स। You can see in this case when the ID was given as 202, I got the name and age, लेकिन जब 606 थी तो उसने मुझे लिखा no worker by that ID. So I hope you must have understood the concept of searching in a text, searching in a binary file. If you have any confusion, write it in the comment section. Thank you so much.